My name is Arkopal Goswami. I am currently the chairperson of the Ranbir & Chitragupta School of Infrastructure Design and Management at IIT Kharagpur. My background is in civil engineering, and specializing in transportation systems. So most of the research that I do is dealing with urban transportation systems. And today what I'm going to be presenting is our work and our research in safe and comfortable pedestrian mobility in urban areas. So like I said in the morning briefly, pedestrians are one of the most vulnerable group of people who gets affected disproportionately whenever a crash happens. Disproportionately meaning, if you look at the fatality count, so in accidents or in crashes, the higher majority of people who actually get killed are vulnerable road users, and one of them are the pedestrians. So today I'm going to present you with extensive research work that we have done in order to find out how to not only analyze these pedestrian crashes, but also to a certain extent can we even predict where pedestrian crashes are likely to happen. क्या हम पहले से जान सकते हैं? तो सुबह कहा जा रहा था प्रोएक्टिव होने के लिए. So in order to be proactive, can we predict which are the locations where pedestrian crashes are most likely to happen? And then once we have predicted, what are the measures that can be taken in order to reduce those probability of those crashes happening, or even reduce the severity of the crashes taking place? क्योंकि आपने सुबह से सुना कि सिवियरिटी, क्रैशेस की सिवियरिटी अलग अलग लेवल की होती है. माइनर क्रैश होता है, मेजर क्रैश होता है, और फिर फैटेलिटी होती है. तो हमको फैटेलिटी ज़ीरो करना है. तो कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो कि क्रैश को ही रिड्यूस कर देते हैं, जो कुछ मेजर्स हैं जो कि फैटेलिटी को माइनर क्रैश में रिड्यूस कर सकते हैं. तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सहायता करती हैं, उसके ऊपर भी हमने थोड़ा बहुत जो रिसर्च किया है, जो पब्लिकेशन हुई है, उसके बेसिस पे हम आपको आज यहाँ पे सूचित करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. इसको आप प्रेजेंटेशन मोड में डाल सकते हो, फुल स्क्रीन में. हाँ, so before you get to understand about pedestrian safety and urban pedestrian safety, a little bit of background on sustainable urban mobility. Where does pedestrian mobility stand, in the entire realm of urban transport? And then we will look specifically at pedestrian safety and our research findings and some future directions. Since mine was the first session, I thought that I'll give you some, background about sustainable urban mobility. So if you look at the urban transport context, and if you look at generic trends that are happening, you will see that motorization is increasing. हम बहुत सारी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, right? Motorization is increasing, as a result of which what is happening is emissions are increasing and safety, so crashes are increasing. ये कहा जाता है कि लगभग हमारी सड़कों पे हर दिन एक बोइंग क्रैश होता है. ये मतलब आप अगर इक्वेट करो, एक बोइंग के एयरक्राफ्ट में मान लीजिए सबसे बड़ा जो होता है 400 लोग भर सकते हैं उसमें, तो हर दिन 400 लोग हमारे रास्ते पे लगभग मारे जाते हैं. वो अगर हेडलाइंस होता, जैसे मान लीजिए एक प्लेन क्रैश हेडलाइंस हो जाता है, तब कितना हंगामा हो जाता है. लेकिन हमारे यहाँ ऐसे एक आध ये इतने फैले हुए हैं, इतने स्पोरैडिक हैं, यहाँ पे एक हो रहा है, वहाँ पे और एक हो रहा है, तो क्यूमुलेटिवली जब अगर देखें तो 400 के करीब लगभग हमारी डेथ्स हो रही हैं. और ये मत मानिएगा कि ये सिर्फ इंडिया के प्रॉब्लम्स हैं या इंडिया के शहरों के प्रॉब्लम्स हैं. ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स हैं. ये सारे विश्व में जो कि डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, यूएस हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, डेवलप्ड कंट्रीज में भी प्रॉब्लम यही है. हमारे
हाँ 400 is that number of average number of all over the world, or is the number is only for India? दिस इज इन इंडिया लिखा हुआ है अराउंड 400 डेथ्स Only India. इन इंडिया में अराउंड 400 डेथ्स हो रही हैं अपने सड़कों पे। और इसका अगर आप ईयर ओवर ईयर थोड़ा बहुत डेटा हम दिखाएंगे, ईयर ओवर ईयर कैसे चेंजेस हो रही हैं। कुछ कुछ शहरों में कम होता है फिर बढ़ जाता है। तो ऐसा कोई सीरियस ट्रेंड नहीं है कि जो कि कम हो रहा है, या तो स्टेबल रह गया है एक जगह पे आके, उसके बाद कम होने में अभी भी बहुत सारी हमारी These are the average number of deaths. एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ और एक क्या हो रहा है कि हमारी अफोर्डेबिलिटी घटती जा रही है। मतलब कि हम ये जो नई नई गाड़ियां आ रही हैं, आप हमेशा देखिएगा ये जो बोला जा, सुबह कैलाश जी बोल रहे थे कि 5 स्टार रेटिंग की गाड़ियां, तो इसमें कभी कभार पहले से क्या होता था कि सबसे टॉप मॉडल में दिया जाएगा आपको 5 स्टार रेटिंग। जो एंट्री लेवल मॉडल है उसमें नहीं रहेगा, उसमें सीट बेल्ट, मतलब सीट बेल्ट तो रहेगा, एयरबैग्स नहीं रहेंगे। तो और क्या होता है, हम दाम देख के खरीदते हैं, तो हम सबसे एंट्री लेवल वाला व्हीकल खरीद लेते हैं, तो इसमें सेफ्टी रेटिंग होती नहीं है। तो ये जो हमारी अफोर्डेबिलिटी के वजह से हमारे जो क्रैशेस हो रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। गाड़ियां तो आ रही हैं 5 स्टार रेटिंग की टॉप मॉडल की गाड़ी है, लेकिन कितने लोग अफोर्ड कर पाते हैं उसको। तो ये भी अभी गवर्नमेंट देख रही है कि नहीं, अब आपको मिनिमम स्टैंडर्ड्स में ही, मिनिमम बेस लेवल एंट्री में ही आपको बहुत सारी सेफ्टी फीचर्स देनी पड़ेंगी, वरना नहीं चलेगा। और फिर इक्विटी इश्यूज हैं। सबसे ज्यादा हानिकारक ये जो सुबह बोला गया था कि एक अगर ब्रेड विनर कोई उसकी मौत हो जाती है एक्सीडेंट में, या वो डिजेबल्ड भी हो जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है जो कि लोअर इनकम ग्रुप के फैमिलीज में होते हैं। और लोअर इनकम ग्रुप के फैमिलीज के लोग ही सड़क दुर्घटना में देखिएगा, मतलब उनके डिजेबल होने के या उनके मारे जाने के संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो ट्रैफिक के साथ हमेशा हर दिन उनकी जद्दोजहद रहती है। ट्रैफिक और वो तो इनके ऊपर जब असर पड़ता है तो वो बहुत ही, उनकी फैमिली के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो ये अब नॉर्मल, अब अर्बन ट्रांसपोर्ट पे किसी भी शहर का उठा के देख लीजिए, मोटराइजेशन बढ़ रहा है, एमिशंस बढ़ रहे हैं, क्रैशेस एक जगह पे आके ऑलमोस्ट इस रेट पे हो रहे हैं कि उससे ज़्यादा कम नहीं हो पा रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी हमारी घटती जा रही है और इक्विटी इश्यूज बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट। तो इसी ख्याल में हमारा जो नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है वो अभी कहता है कि हमको नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट हो गया पेडेस्ट्रियन, बाइसिकल, और अभी कुछ पेडल असिस्टेड बाइसिकल्स भी आ रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक मोटर्ड हैं, वो भी थोड़ा बहुत नॉन मोटराइज में ही आ रहे हैं। लेकिन why are we pushing towards non-motorized transport? Is just because our cities are so constrained. हमारे सिटीज में जगह नहीं है, हम रास्ते चौड़ा करेंगे कहाँ करेंगे? रास्ता चौड़ा करना आसान बात नहीं है, और रास्ता चौड़ा करना एक सॉल्यूशन भी नहीं है सेफ्टी या कंजेशन को कम करने के लिए। तो क्या बोला जा रहा है, अगर आप देखिएगा इस फोटो में, अगर आपको 40 लोगों को कहीं पे ट्रांसपोर्ट कराना है और वो अगर साइकिल से चलते हैं तो उनको उतना ही रोड का जगह लग रहा है। अगर वही 40 लोग 40 गाड़ियों में जाते हैं तो उनको इतना ज़्यादा रोड स्पेस लग रहा है, और अगर वही 40 लोग एक बस में जाते हैं तो उनका इतना स्पेस लग रहा है। तो ये जो रोड की स्पेस की कमी है, उसको मद्देनजर रखते हुए नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट पे ध्यान देने की बात हो रही है। अभी पॉलिसीज में हमेशा देखिएगा, पहले होता था, हम ट्रांसपोर्ट की भाषा में कहते हैं थ्रूपुट, हमेशा हम थ्रूपुट देखते थे, कितने व्हीकल्स जल्दी हम एक रास्ते से निकाल सके। दैट यूज्ड टू बी आवर क्राइटेरिया कि व्हाट इज द थ्रूपुट। नाउ वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम मूविंग व्हीकल्स टू मूविंग पीपल। हमको गाड़ियां नहीं गिननी है, हमको कितने लोग मूव हो रहे हैं वो गिनना है। एक गाड़ी में, एक कार में अगर एक बंदा जा रहा है तो वो बहुत स्पेस लग रहा है उसमें, और वो बहुत हानिकारक है। नेक्स्ट स्लाइड। और नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट से ये भी होता है कि एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है। हमारा
हमारे कंट्री में स्पेशली जो लोकल बिजनेस ओनर्स हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस ओनर्स हैं, उनके शॉप्स की एक्सेसिबिलिटी ही डिपेंड करता है कि उनका कितना इनकम होता है। हाईवे, अगर आप हाई स्पीड रोड बनाते हैं किसी शॉप के बगल में, तो क्या होता है, गाड़ियां वहां से निकल जाती हैं हाई स्पीड में, रुक के वहां पे खरीदारी करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो क्या देखा जा रहा है कि अगर आपका लैंड यूज और ट्रांसपोर्ट का अच्छा तालमेल रहे, इफ देर इज गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर लैंड यूज एंड ट्रांसपोर्ट, देन यू कैन हैव गुड एक्सेसिबिलिटी एंड दैट विल लीड टू गुड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ योर सिटीज। और एक्सेसिबिलिटी तभी बढ़ सकती है जब आप इसको नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट की तरफ से देखें। अगर आप हमेशा यही सोचें कि हमको स्पीड बढ़ानी है रोड्स की ताकि थ्रूपुट बढ़े, तो इससे एक्सेसिबिलिटी कभी कभार कम हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये और एक अर्बन ट्रांसपोर्ट का एक और बहुत ही पॉपुलर चार्ट है जो कि हर बार दिखाया जाता है कि एनर्जी यूज। अभी हमारा एनर्जी पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है, हम कितने सस्टेनेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ले जा सकें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक बड़ा सेक्टर है जहाँ पे हमको एनर्जी नीड्स बहुत होती हैं। लेकिन अगर आप देखें कि लैंड यूज और ट्रांसपोर्ट का अगर अच्छा तालमेल बैठता है तो आपका एनर्जी यूज बहुत कम हो जाता है। तो इस पे देखिएगा, ऑन द एक्स एक्सिस इज अर्बन डेंसिटी, पॉपुलेशन पर हेक्टेयर, और वाई एक्सिस में है एनर्जी, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एनर्जी कंजम्पशन। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट रिलेटेड है। तो आप देखिएगा ये जो नॉर्थ अमेरिका की शहरें हैं, वो आपने अक्सर सुना होगा, ये कार ओरिएंटेड शहरें हैं। ये डिजाइन ही ऐसे की गई है कि आपके पास अगर गाड़ी नहीं है तो आप पॉइंट ए से पॉइंट भी बहुत मुश्किल से पहुंच सकते हैं, पैदल नहीं जा सकते क्योंकि इतनी दूरी होती है एक दुकान से आपके घर की। तो ये कार ओरिएंटेड शहर होने की वजह से इनका देखिए अर्बन डेंसिटी भी बहुत कम है और इनका एनर्जी यूज भी बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्यूल इनकी ज़रूरत है। अब धीरे धीरे आइए ऑस्ट्रेलियन और यूरोपियन सिटीज़ की तरफ, तो देखिए थोड़ा थोड़ा अपना डेंसिटी बढ़ रहा है और एनर्जी यूज घट रहा है। और वही आप अगर एशियन सिटीज़ और अपने इंडियन सिटीज़ की ओर आएँ तो हमारे तो बहुत ज़्यादा डेंसिटी है हमारे शहरों में, तो हमारी एनर्जी यूज भी बहुत कम है। तो ये हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, दीज आर आवर सिटी स्ट्रेंथ्स जो हमको बरकरार रखनी है। हम जब हमारा फैलता है, हम सोचते हैं कि देखिए बहुत कंजेशन हो गया है और यहाँ पे सड़कें नहीं हो पा रही है, तो हम सिटी को थोड़ा स्प्रेड आउट होने देते हैं। तो वो हमको ध्यान में रखना है कि सिटी अगर स्प्रेड होता है तो एनर्जी यूज बढ़ता है, गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, और गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं तो एक्सीडेंट होने के और क्रैशेस होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये हमको दिमाग में बहुत केयरफुल प्लानिंग के साथ, इसीलिए कहते हैं ग्रोथ बाउंड्रीज बनाइए। इस ग्रोथ बाउंड्री को ध्यान में रखते हुए ही सिटी को आप प्लान कीजिए, ग्रोथ बाउंड्री के बाहर न जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, आप स्लाइड मोड में डाल दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड, हाँ, वो जो ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में है, फ्रॉम करंट स्लाइड। हाँ अच्छा, दिक्कत हो रही है, ओके, ठीक है। तो अब चलते हैं हम पेडेस्ट्रियन ट्रांसपोर्ट की तरफ। ये पहले कुछ स्लाइड में आपने ओवरऑल अर्बन ट्रांसपोर्ट सस्टेनेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा जाना। अब जब हम पेडेस्ट्रियन ट्रांसपोर्ट की तरफ आते हैं, और खासकर अब जब हम आगे बढ़ेंगे पेडेस्ट्रियन सेफ्टी की ओर, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पेडेस्ट्रियन है कौन। हम हमेशा समझते हैं कि जो घर से लेके पूरा अपने ऑफिस तक पैदल जाता है वही एक पेडेस्ट्रियन हो सकता है, जो घर से लेके मार्केट तक पूरा पैदल जाता है वही पेडेस्ट्रियन होता है। केवल वही पेडेस्ट्रियन नहीं होता है, एवरी मोटरिस्ट इज अ पेडेस्ट्रियन इन सम पार्ट ऑफ इट ट्रिप, है ना। आप अगर गाड़ी से भी जा रहे हो तो आपको गाड़ी कहीं पार्क करनी होती है, फिर वहाँ से आपको पैदल चलना होता है।
आप अगर बस से जा रहे हो तो बस स्टॉप तक आपको पैदल चलना होता है, फिर बस स्टॉप से उतर के फिर आपको पैदल चलना होता है। तो हम हमेशा जब भी कोई ट्रिप कर रहे हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम पेडेस्ट्रियन हैं। तो इसलिए हमारा जो पूरा शहर का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, दैट शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल पेडेस्ट्रियंस। हम ऐसे कभी कभार सोचते हैं कि इस स्पॉट पे थोड़ा फुटपाथ बना देते हैं, उस स्पॉट पे फुटपाथ बना देते हैं। ऐसे स्पोरेडिक स्पॉट्स पे फुटपाथ बनाने से ज़्यादा कोई लाभ नहीं होता है। इसके अलावा हम पीपल हु वॉक, सिट, स्टैंड इन पब्लिक स्पेस यूजिंग वॉकिंग स्टिक, क्रचेस एंड व्हील चेयर आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज पेडेस्ट्रियंस। तो जब हम फैसिलिटीज बनाएंगे उनके लिए, जब हम या तो फुटपाथ बनाएंगे या तो फुट ओवर ब्रिज बनाएंगे, तो हमको ये ध्यान में रखना है कि हम सिर्फ जो चल सकते हैं पैदल, जो एबल बॉडीड हैं उनके लिए नहीं बना रहे हैं, जो व्हीलचेयर पे हैं उनके लिए भी बना रहे हैं, जो वॉकिंग स्टिक से चलते हैं उनके लिए भी बना रहे हैं। इसीलिए देखिएगा हमेशा आजकल हम फुट ओवर ब्रिज को बनाने का, जब भी कोई बनाने का प्लान होता है तो वो लास्ट हमारा प्लान होता है, क्योंकि फुट ओवर ब्रिज यूज करना सारे पेडेस्ट्रियंस के लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर अब कुछ फुट ओवर्स में देखिएगा एस्केलेटर वगैरह, लिफ्ट वगैरह लगा रहे हैं, लेकिन फिर उसका मेंटेनेंस और ये बहुत एक्सपेंसिव है वो। तो इसलिए देयर आर मेनी अदर वेज टू इंप्रूव पेडेस्ट्रियन फैसिलिटीज रादर देन ग्रेड सेपरेशन एट अ पॉइंट। नेक्स्ट स्लाइड। जब आप रिसर्च में धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगते हैं, तब आपको एक पेडेस्ट्रियन, जैसे हम जब व्हीकलर रिसर्च करते हैं तो व्हीकल के बारे में जानना जरूरी होता है। व्हीकल कितना लंबा है, व्हीकल कितना चौड़ा है, व्हीकल के एक्सेलरेशन डिसेलरेशन प्रोफाइल्स क्या हैं। तो वैसे ही जब हम पेडेस्ट्रियंस के बारे में बात करते हैं तो पेडेस्ट्रियंस के बारे में जानना, पेडेस्ट्रियंस का डेप्थ कितना है, हेड बॉडी विड्थ कितना है, नॉर्मल बॉडी विड्थ आपके शहर में कितना है पेडेस्ट्रियंस का, नॉर्मल बॉडी डेप्थ कितना है। हमारे देखिए बहुत सारे मैनुअल्स हैं, जैसे कि यूएस में डेवलप किया हुआ हाईवे कैपेसिटी मैनुअल, अभी इंडिया में भी डेवलप किया हुआ हाईवे कैपेसिटी मैनुअल। तो ये मैनुअल बताते हैं कि आप जब एक यूनिट, हम पैसेंजर कार यूनिट के बारे में जानते हैं PCU, लेकिन अब जब आप पेडेस्ट्रियन के बारे में बात करेंगे तो पेडेस्ट्रियन का भी एक यूनिट है, तो उसको भी डिफाइन करना जरूरी है। तो यहां देखिएगा, अच्छा यहाँ शिफ्ट नहीं हो सकता, यहां देखिएगा कि इंडिया के सिचुएशन में हम पेडेस्ट्रियन को कैसे डिफाइन करते हैं कि हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि इंडिया में हमेशा कोई एक लगेज लेके चलता ही होगा पेडेस्ट्रियन, एक थैला, एक बैग। तो इसके चलते चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है हमारे बॉडी डेप्थ। अदरवाइज फॉरेन कंट्रीज में लोग थोड़े लंबे और चौड़े ज्यादा होते हैं, हमारे में उतने नहीं होते हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा दिया गया है वो लगेज की वजह से दिया गया है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम अगर अपने साइड वॉक डिजाइन करें, हमने फुटपाथ डिजाइन करें, तो वो सेफ फुटपाथ हो सकते हैं। सफिशिएंट स्पेस होगा उस फुटपाथ में सफिशिएंटली नेविगेट करके चलने के लिए। लेकिन अगर ये हम ध्यान में नहीं रखें तो फिर कभी कभार दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट प्लीज। फिर हमको बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है। देखिएगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की हर क्लास में व्हीकल्स के बेसिक चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन जब आप पेडेस्ट्रियन की बात करते हैं तब पेडेस्ट्रियंस की बेसिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप सेफ्टी रिसर्च करते हैं। जब आप डेटा निकाल के लाते हैं तो पेडेस्ट्रियन कितनी स्पीड से चल रहा था, तो एक पेडेस्ट्रियन को तो हम सिर्फ एक पेडेस्ट्रियन का जानने से तो होगा नहीं, हमको पूरा पेडेस्ट्रियन स्ट्रीम के बारे में जानना है। तो देखिए ऐसे सारे डेटा अवेलेबल है जो कहता है कि जब डेंसिटी बढ़ती है, राइट, जब बहुत ज़्यादा लोग एक ही स्क्वायर मीटर या एक ही इसमें आ जाते हैं तो स्पीड घट जाती है ऑटोमेटिक। हाँ, भीड़ में स्पीड घट जाती है पेडेस्ट्रियन की चलने की। फिर देखिए स्टूडेंट लोग थोड़ा फास्ट चलते हैं, जबकि जो शॉपिंग कर रहे होते हैं वो थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। तो एक ही फुटपाथ पे स्टूडेंट भी चल रहा है, शॉपिंग करने वाला भी चल रहा है, दोनों की स्पीडें अलग हैं। तो हम इसको कैसे डिजाइन करें, कैसे सेफली डिजाइन करें। और आजकल देखिएगा ये वर्ड सिर्फ डिजाइन वर्ड यूज नहीं होता है, सेफ डिजाइन हमेशा यूज होता है। वी आर इनकॉर्पोरेटिंग सेफ्टी फ्रॉम द डिजाइन स्टेज इटसेल्फ, फ्रॉम इवन द अलाइनमेंट स्टेज इटसेल्फ।
आजकल जो सेफ्टी ऑडिट्स होती हैं, है ना, रोड सेफ्टी ऑडिट्स तो हर रोड के लिए, नए रोड के लिए मैंडेटरी हो गई हैं फंडिंग के बेसिस पे। तो ये जब ऑडिट होता है तो हम डिज़ाइन स्टेज, उसी स्टेज से हम सेफ डिज़ाइन बोलना चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन हो जाए उसके बाद सेफ्टी के बारे में सोचा जाए। तो डिफरेंट स्पीड प्रोफाइल, जैसे कि एक सड़क के ऊपर अलग अलग गाड़ियां अलग अलग स्पीड से चलती हैं, सिमिलरली एक फुटपाथ के ऊपर अलग अलग लोग अलग अलग स्पीड से चलते हैं। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए आप कैसे सेफ डिज़ाइन करेंगे, वो भी हमको देखना है। नेक्स्ट, सिमिलरली स्पेस और फ्लो के बीच में क्या रिलेशनशिप है, हम एक बंदे के लिए कितना स्पेस दें, है ना। हम अगर एक इंडिविजुअल बंदे को पूछा जाए, उसको तो पूरा स्पेस चाहिए, भैया मैं हाथ हिलाते हिलाते ऐसे चलूंगा, लेकिन हमको तो डिज़ाइन करना है, उतना स्पेस तो हम दे नहीं सकते एक बंदे को। तो कितना मिनिमम डिज़ाइन स्पेस दिया जाए ताकि पूरी फैसिलिटी आपकी सेफ हो, है ना। मान के चलिए फुटपाथ हमेशा रोड के बगल में ही होता है, तो जो एज पे चलता है बंदा, उसको हमेशा डर रहता है कि कोई गाड़ी आके ना साइड से स्वाइप ना कर दे, तो उसको भी एक स्पेस देना ज़रूरी होता है। तो उसको बफर कहा जाता है कि बफर स्पेस कितना दिया जाए ताकि सेफली बंदा चल सके, है ना। तो ये सब हमको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। और सिमिलरली देखिए स्पेस और स्पीड के साथ भी कोरिलेशन है। अब इसके बाद एक मैक्सिमम लिमिट के बाद, मान लीजिए आपका स्पेस आप मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड जो आप देख रहे हैं स्पीड का वाई एक्सिस पे, 1 मीटर पर सेकेंड से आप जितना भी स्पेस ज्यादा देने लगो, स्पीड बढ़ेगा नहीं, क्योंकि एक बंदा उससे ज्यादा फास्ट चल ही नहीं सकता। तो स्पेस का भी एक लिमिटेशन है। आप ये मत सोचिए कि मैं ज्यादा स्पेस दे दूंगा तो ज्यादा फास्ट चलने लगेंगे लोग, वो तो फिजिकल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। एक बंदे का फिजिकल कैपेसिटी जितना है उतना ही स्पेस। तो ये भी दिमाग में, ये भी हमको सोच के चलना है। ऊपर ऊपर ऊपर, और थोड़ा ऊपर जाइए। हाँ ठीक। नेक्स्ट, अब आते हैं, नाउ लेट अस कम टू पेडेस्ट्रियन सेफ्टी। देखिए पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के बारे में जब हम बात करते हैं, देयर आर ब्रॉडली 5 domains that we should understand. Road safety is affected by road design. Road safety is affected by vehicle design. Road safety is affected by environmental conditions. Road safety is affected by human behavior. And safety also includes, जैसे कैलाश जी कह रहे थे, post crash care. तो ये सारी एलिमेंट्स हैं जो कि एक रोड को सेफ बना सकती है ब्रॉड। देखिए हम हमेशा पहले क्या होता था, 5-10 साल पहले हम पूरा ही दोष ह्यूमन बिहेवियर पे डाल देते थे। अरे भाई बंदे को तो मालूम ही नहीं था, उसको तो आज घर से वो मरने के चक्कर में ही निकला था, है ना। हम पूरा दोष ह्यूमन बिहेवियर पे डाल देते थे। लेकिन आप अब जब से ऑडिट होना चालू हुआ है, जब से आप सेफ्टी ऑडिट करना चालू किए हैं, आप खुद ही देखिए कि आप कितने सारे छोटी छोटी चीज़ें पकड़ रहे हैं रास्ते के ऊपर जो कि सेफ्टी को अफेक्ट करता है। तो ये जो रोड डिज़ाइन है इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग इन इम्प्रूविंग रोड सेफ्टी। आप सेफ रोड डिज़ाइन बनाइए, है ना। आप एक रोड को ऐसे मत सोचिए कि वो रोड सिर्फ व्हीकल्स के लिए है, वो रोड सबके लिए है। इट इज़ अ कंप्लीट स्ट्रीट। अगर आप वो कंप्लीट स्ट्रीट, स्पेशली अर्बन रास्तों पे, अर्बन शहरों की सड़कों पे, उनको आप कंप्लीट स्ट्रीट मानिए। वो साइकिलिस्ट के लिए भी है, पैदल चलने वालों के लिए भी है, स्लो मूविंग व्हीकल के लिए भी है, फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए कम से कम है। तो रोड डिज़ाइन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट कैन और दैट अफेक्ट्स रोड सेफ्टी। व्हीकल डिज़ाइन, आप मान के चलिए हमारे पास कितनी जुगाड़ की गाड़ियाँ होती हैं, है ना। हम तो ये अभी कह रहे हैं कि
जो है ना BMW और इनको तो छोड़ दीजिए आप, लेकिन आप लोअर एंड में जो गाड़ियाँ चलती हैं, थोड़े आप रूरल एरियाज़ की तरफ जाएं तो सारी जुगाड़ की गाड़ियाँ चलती हैं। एक टेम्पो थी उसको ट्रक बना दिया गया है, एक ट्रक थी वो बस बन गई है। तो ये जो जुगाड़ की गाड़ियाँ हैं, इसको देखिए, एक तरफ लाइवलीहुड है, हम कहते हैं कि वो उससे अपना दाना पानी चला रहा है, लेकिन अगर वो बंदा उसी में मारा गया तो दाना पानी तो उठ ही जाएगा। तो इसके बारे में हमको सोचना ज़रूरी है। ये ऑल्टरेशन, व्हीकल को रैंडमली ऑल्टर कर देना, ये बहुत ही एक आम बात थी और अभी भी कुछ कुछ रीजन्स में है, तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। ऑन टॉप ऑफ इट एनफोर्समेंट चाहिए कि जब आपका सीट बेल्ट, आप सीट बेल्ट क्यों नहीं पहन के चलाएंगे, आप हेलमेट क्यों नहीं पहन के चलाएंगे, तो इस पे एनफोर्समेंट जरूरी है। बट इवन गोइंग वन स्टेप बिहाइंड कि ये जुगाड़ की गाड़ियां हमको बंद करनी जरूरी है। एनवायरमेंटल कंडीशंस, देखिए हम अभी सिर्फ प्लेन्स की बातें कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ प्लेन्स है, माउंटेनस टेरेन है, ऐसे रास्ते हैं जो कि नदियों के पास से जा रहे हैं, ओशंस के पास से जा रहे हैं, ओशन इरोजन हो रहा है। तो ये सब भी एनवायरमेंटल कंडीशंस भी हमको याद रख के सेफ डिज़ाइन बनाना है। हम हमेशा ही सुनते हैं कि लैंडस्लाइड हो गया, ये रास्ता बंद हो गया। बंद हो गया तो ठीक है, लेकिन रास्ते में मारे गए इतने सारे लोग। तो ये जो एनवायरमेंटल कंडीशन से इनको अगर ध्यान में नहीं रख के बनाया जाए तो बहुत मुश्किलें हैं। अर्बन रोड्स पे मान के चलिए, जब कोहरा होता है, फॉग होता है, तब कोई अलर्ट होना चाहिए कि भाई आपको इतना आपकी साइड डिस्टेंस कम होती जा रही है तो आप स्पीड कम करें। जब बारिश तेज हो रही है तो आप स्पीड कम करें। ऐसा नहीं कि बारिश हो रही है तो हम जल्दी जल्दी घर पहुंच जाएं, तो और फास्ट चलाएं। और ह्यूमन बिहेवियर तो है ही। ह्यूमन को आप, जैसे सुबह बताया जा रहा था, जब तक आप बचपन से ये चीज़ें नहीं सिखाएंगे तब तक ह्यूमन बिहेवियर चेंज होना बहुत मुश्किल है। आप किसी को भी ले लीजिए, आप हमारे खुद के बच्चों को ही ले लीजिए, आप कि आपके कितना सुनते हैं आपकी बातें, है ना। तो अगर कोई बाहर वाला आके कहेगा भाई तुम हेलमेट पहन के चलाओ, तो वो कितना ही सुनेगा। तो ह्यूमन बिहेवियर इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, जैसे सही बताया गया था कि ये बचपन से ही हम में आदत डाल देनी चाहिए कि नहीं, आपको साइकिल भी चलाना है तो आप पहले साइकिल का हेलमेट डालिए, क्योंकि बच्चे सबसे पहले साइकिल चलाना सीखते हैं। तो साइकिल का हेलमेट डालिए। तब से अगर वो साइकिल का हेलमेट डालना शुरू कर देते हैं तो आगे जाके वो टू व्हीलर और फिर कार जब भी खरीदें तब बिहेवियर उनका अच्छा हो सकता है। और पोस्ट क्रैश केयर, जिसके बारे में हम बहुत इंजीनियर्स, प्लानर्स, हम बहुत कम सोचते थे। हम ये पूरा डॉक्टर्स को छोड़ देते थे, ये पूरा मेडिसिन वालों के ऊपर छोड़ देते थे कि भाई आप देख लीजिए, ये तो आपका डोमेन है। लेकिन जब एक्सीडेंट होता है, वो एक्सीडेंट को रिपोर्ट करना, बहुत जल्दी अगर रिपोर्ट हो गया और इमरजेंसी एम्बुलेंस वहाँ पे जल्दी पहुँच गया तो ये लोगों की जान बचा सकता है। एम्बुलेंस के अंदर भी क्या क्या सेवाएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मारुति वैन वाला एम्बुलेंस है, एक ऑक्सीजन डाल के हम भेज दिए वहाँ पे। क्रिटिकल अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वैसा ही एम्बुलेंस जाना चाहिए। फिर जब एम्बुलेंस बंदे को लेके जा रहा है तो ये जो रास्ता देना एम्बुलेंस के लिए, ये एक बड़ी बिहेवियरल चीज़ है। फिर से हमारे पीछे एम्बुलेंस बत्ती लेके बजाए जा रहे हैं, हम नहीं छोड़ रहे रास्ता। उस समय पे ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि आपके समय की कीमत पीछे वाले के समय की कीमत से थोड़ा सा कम है, क्योंकि हम हमेशा समझते हैं कि हमारी समय की कीमत सबसे ज़्यादा है, हमको यहाँ पे फंसे नहीं रहना है, हमको बॉस ने ये बोला है, हमको फलाना ने ये बोला है, हमको जल्दी जाना है। लेकिन वो पीछे जो बंदा है उसके जान पे आ गई है, तो उसके जान की कीमत, उसके समय की कीमत आपके समय की कीमत से थोड़ा सा कम है, आप उनको जाने दें। ये अगर सही तरह से किया जाए, जो गोल्डन आवर बोला जाता है, तो बहुत सारे फैटेलिटीज़ कम हो सकती हैं।
बहुत सारी फैटेलिटीज कम हो सकती है। तो ये ब्रॉडली एलिमेंट्स हैं ऑन रोड सेफ्टी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इससे पहले वाला। हाँ, तो ये जो मैं पहले कह रहा था, ये थोड़े नंबर्स हैं। नंबर्स जानना जरूरी है, क्योंकि बिना क्वांटिफाई किए कोई भी चीज करना गलत है। तो ग्लोबली अगर ये ग्लोबल डेटा है, ग्लोबली अगर आप देखें तो पेडेस्ट्रियंस एंड बाइसिकलिस्ट रिप्रेजेंट 26% ऑफ ऑल डेथ्स। सो लगभग 1/4 जो मारे जाते हैं सारे विश्व भर में, वो या तो पेडेस्ट्रियंस होते हैं या बाइसिकलिस्ट होते हैं। तो ये हर साल, ये सिर्फ 2 साल का डेटा दिखाया गया है, लेकिन ये हमेशा सालों से यही होता आ रहा है कि क्योंकि हमारे व्हीकल्स और बड़े होते जा रहे हैं, व्हीकल बड़े होते जा रहे हैं, उनके स्पीड्स बढ़ते जा रहे हैं, रास्ते भी चौड़े होते जा रहे हैं, तो एक्सीडेंट होने पर मौत की संभावना पेडेस्ट्रियंस और बाइसिकलिस्ट की ज़्यादा होती जा रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे पास कुछ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इंडिया में हैं, पॉलिसी और गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमको और अच्छे डॉक्यूमेंट्स बनाने की ज़रूरत भी है। जैसे मान के चलिए IRC के गाइडलाइंस है, इंडियन रोड कांग्रेस के गाइडलाइंस हैं, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, UTPEC दिल्ली ने स्ट्रीट डिज़ाइन गाइडलाइंस बनाए हैं, ITDP ने फुटपाथ डिज़ाइन गाइडलाइंस बनाए हैं। तो मतलब ये है कि ये कहना कि कुछ भी नहीं है, हम कैसे फुटपाथ बना दें, हमारे लिए डिज़ाइन ही नहीं है, तो ये गलत बात है डिज़ाइन, तो उसको आप फॉलो कीजिए और इम्प्रूव कीजिए। हमेशा इम्प्रूवमेंट का हमेशा स्कोप है, तो इम्प्रूव करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे देखिए, पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पुणे ने एक स्मार्ट सिटी के तहत बहुत ही अच्छा काम किया है पेडेस्ट्रियन मोबिलिटी को लेके। उन्होंने एक सड़क पे तो उन्होंने शायद लेन्स भी कम कर दिए, व्हीकुलर लेन्स कम करके पेडेस्ट्रियन फुटपाथ चौड़ा कर दिया है। तो ये तो बहुत ही कम सुनने में आता है कि व्हीकल लेन्स राइट ऑफ वे कम करके सड़क फुटपाथ को चौड़ा कर देना। तो कुछ ऐसे अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं शहरों के, जो कि हमें देख के हमारे खुद के शहर में वो यूटिलाइज हो सकता है कि नहीं, वो देखना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये कुछ मेन चीजें हैं जो कि विश्व भर के रिसर्चर्स कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि फैटेलिटी पेडेस्ट्रियंस की सबसे ज्यादा हाई है, प्रेडिक्शन, एक्सीडेंट प्रेडिक्शन मॉडल्स बहुत कम है, कि प्रेडिक्ट करना पहले से, अगर हम प्रोबेबिलिटी ही है, लेकिन अगर प्रेडिक्ट कर पाए कि कहां पे एक्सीडेंट हो सकता है, तो कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे स्टडीज कम है। और एक है कि एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं होता है, और पेडेस्ट्रियन एक्सीडेंट्स खास करके अगर फैटेलिटी नहीं हो तो रिपोर्ट बहुत कम होती है। और लग गया, बाइक से थोड़ा सा लग गया पेडेस्ट्रियन को, ये तो भाई हमारे यहाँ पे हर दिन की चीज़ है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हैं कि जो कि रिपोर्ट नहीं होते हैं और नियर मिस होते हैं, होते होते बच गया, किसी ने ब्रेक मार दी बच गए भाई, या किसी ने स्पीड कम कर ली बच गए भाई। तो ये जो नियर मिस एक्सीडेंट्स हैं वो आज मिस हो रही हैं, कल शायद मिस नहीं होंगी। तो इनके ऊपर रिसर्च करना बहुत जरूरी है कि आज शायद वो ड्राइवर के ब्रेक मारने की वजह से बच गए, लेकिन दूसरा ड्राइवर शायद ब्रेक नहीं मारता तो लग जाती। तो नियर मिस एक्सीडेंट्स एक बहुत नया टॉपिक एरिया है जहां पे बहुत काम हो रहा है। डिफरेंट एनवायरमेंट्स एंड जियोग्राफिकल रीजन्स, मान लीजिए वही मैं जो कह रहा था कि हमेशा प्लेन्स के ऊपर रिसर्च करना, क्योंकि हम मोस्टली प्लेन्स में रहते हैं। रिसर्च मोस्टली ऐसे ही सड़कों के ऊपर की जाती है, लेकिन माउंटेनस रीजन, हिली रीजन, और जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा होती है, हमारे तो इंडिया में बर्फ़ भी होती है बहुत सारे शहरों में,
विंटर के टाइम, तो वहाँ पे तब रोड सेफ्टी का क्या सिचुएशन है वो जानना जरूरी है। नॉन फेटल कॉजल इंजरीज, तो ये विश्व भर के लोग ये कह रहे हैं कि ये सब रिसर्च करना ज़रूरी है, रिसर्च करके पॉलिसी बनाना ज़रूरी है। आगे देखिए, हमारे इंडिया के ही ये अलग अलग शहरों के रास्तों के फोटोज़ हैं। तो वॉकिंग एनवायरनमेंट जिसे कहते हैं वो कितना अलग है हमारे ही देश में। हमारे देश में जैसे जयपुर में बाजार है, जो कि चलने का एरिया वो फुटपाथ तो नहीं है वो, लेकिन बाजार के सामने से शेडिंग होता है, पुराने बाजार होते हैं तो शेडिंग होता है, वहाँ पे लोग चलते हैं और बगल में पार्किंग करते हैं। ITO न्यू दिल्ली है, जो कि बहुत अच्छी चौड़े साइडवॉक्स हैं, फुटपाथ्स हैं। पुणे में जैसे मैं कह रहा था, पुणे के साइडवॉक्स पे बैठने के लिए ऑलमोस्ट एक्सरसाइज करने के लिए ओपन जिम्स वो सब भी दिए हुए हैं। गैंगटॉक में देखिए, क्योंकि उनका हिली एरिया है तो उन्होंने पेडेस्ट्रियंस के लिए ग्रेड सेपरेटेड नेटवर्क ही बना दिया है। तो कोई पेडेस्ट्रियन मतलब अगर चाहे तो सिर्फ फुट ओवर ब्रिज नहीं, एक जगह से और दूसरे जगह जाने के लिए पूरा ग्रेड सेपरेशन है। तो वहां पे उसको कहते हैं बटरफ्लाई ब्रिज। तो पेडेस्ट्रियन इंटरचेंज भी है, हम सिर्फ व्हीकलर इंटरचेंज के बारे में सुने हैं, लेकिन पेडेस्ट्रियन इंटरचेंज भी है। सिमिलरली आप मुंबई में चले जाइए तो हर सबर्बन रेल स्टेशन पे देखिएगा आप स्काई वॉक्स हैं उनके, जो कि सेपरेट करता है पेडेस्ट्रियंस को और व्हीकुलर ट्रैफिक को। तो इतना डाइवर्स, और हैदराबाद की पुरानी गलियों में चले जाइएगा तो ऐसा सिचुएशन है। तो इतने डाइवर्स वॉकिंग एनवायरनमेंट में आपको सेफ डिज़ाइन बनाना है, आपको सेफ्टी एसेस करना है, तो वो भी एक चैलेंज है। क्योंकि वेस्टर्न शहरें देखिएगा, यूरोप की कंट्रीज देखिएगा, वो हमारे एक स्टेट के बराबर की होती हैं, तो उनमें बहुत होमोजिनिटी होती है। तो होमोजिनिटी होती है तो एक अगर कोई मेजर बना दिया जाए तो वो पूरे कंट्री में आसानी से लागू हो सकती है। लेकिन हमारे में अगर हैदराबाद के लिए बनाया जाए तो गैंगटॉक में लागू नहीं होगी, गैंगटॉक के लिए बनाया जाए तो दिल्ली में लागू नहीं होगी। तो हमको बहुत कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव डिज़ाइन, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव सेफ डिज़ाइन बनाना है। नेक्स्ट स्लाइड चलिए। और हमारे यहाँ लोग चलते भी पैदल बहुत ज़्यादा हैं, है ना। विदेशी देश में अक्सर उनके 4-6 महीने तो बहुत ठंड के रहते हैं, तो तब चलते नहीं हैं ज़्यादा पैदल। लेकिन हमारे यहाँ ऑलमोस्ट लगभग पूरे साल भर बहुत चलते हैं। तो एक स्टडी में हमने देखा है कि 7 दिन, 3 अलग अलग शहरों की स्टडीज की थी, 7 दिन सारे लोग काम के लिए चलते हैं, एक्सरसाइज के लिए चलते हैं। ये एक्सरसाइज ट्रिप का ड्यूरेशन है, और वो कितने मिनट के लिए चलते हैं, है ना। ये जानना भी जरूरी है कि भैया आदमी आधे घंटे के लिए चलता है, आधे घंटे के लिए चलता है तो थक जाता होगा, धीरे धीरे चलता होगा। तो जब धीरे धीरे चलता है तब उसकी सेफ्टी कैसे अफेक्ट होती है। जब फास्ट चलता है, बिना सोचे रास्ता क्रॉस कर रहा है, तब उसका सेफ्टी का क्या सिचुएशन। तो ये सब चीज़ें जानना भी बहुत ज़रूरी है। आगे चलिए। हमने ये पूछ लिया था कि आपका परसेप्शन क्या है सेफ्टी के बारे में, आपकी क्या राय है। जस्ट पेडेस्ट्रियन को पूछा गया। तो आप देखिए, हर शहर में, तीनों शहर में बहुत सारे लोग खुश नहीं है सेफ्टी से। जो भी उनकी पेडेस्ट्रियन सेफ्टी इंटरसेक्शन हो जाए, यानी तो फुटपाथ हो जाए, फुटपाथ हमारे यहाँ इंक्रोच्ड रहती हैं, फुटपाथ के ऊपर हम गाड़ी 2 व्हीलर पार्क कर देते हैं, फुटपाथ के ऊपर हम कचरा फेंक देते हैं, फुटपाथ के ऊपर हम इलेक्ट्रिक पोल की तारें बिछा देते हैं। तो फुटपाथ हमारी नाम के वास्ते ही है। तो फुटपाथ क्रॉसिंग हो गया, जेब्रा क्रॉसिंग सही मार्क नहीं होती हैं। सिग्नल्स पे हमारे पेडेस्ट्रियन सिग्नल्स बहुत कम होते हैं, बहुत कम जगहों पे ही पेडेस्ट्रियन सिग्नल्स होते हैं। तो ये सब देखा जाए तो हमने ये हैदराबाद, जयपुर और वाराणसी में 3 शहरों में देखा कि जैसे वाराणसी में मान के चलिए मॉडरेटली अनसेफ ही 50% लोग कह रहे हैं। एक्सट्रीमली अनसेफ और मॉडरेटली अनसेफ मिला के ऑलमोस्ट 50% से ऊपर लोग कह रहे हैं कि अनसेफ है, जबकि बाकी 2 शहरों में फिर भी
थोड़ा सा सेफ दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नाखुश हैं। तो क्या कहता है, परसेप्शन जानना जरूरी क्यों है? जब तक आप परसेप्शन नहीं जानेंगे, ऐसा कहा जाता है कि वंस यू परसीव एन अनसेफ सिचुएशन यू विल बिहेव सेफली। आप अगर परसीव ही नहीं कर पाए कि ये सिचुएशन तो अनसेफ नहीं है, मैं तो रोड क्रॉस कर सकता हूं, तो आप कर देंगे रोड क्रॉस। तो परसेप्शन इसीलिए जरूरी होता है कि फर्स्ट यू परसीव देन यू एक्ट। सो परसेप्शन जब तक आपका ये आप सोच ही नहीं पाएंगे कि इस सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब तक आप परसीव ही नहीं करोगे तब तक आप चेंज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर हम इस डेटा को लेके बहुत मॉडलिंग भी करते हैं। तो यहां से क्या पता चलता है कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। देखिए लिखा गया है बफर, मतलब वो जो बफर जोन है पेडेस्ट्रियन और व्हीकल के बीच में, वो एक बड़ा फैक्टर है लोगों के सेफ्टी के परसेप्शन के ऊपर। ज़ीब्रा क्रॉसिंग तो है ही है। नाइट टाइम सेफ्टी, तो हमारे यहाँ पे स्ट्रीट लाइटें आधी स्ट्रीट लाइटें जलती नहीं है रात को। नाइट टाइम सेफ्टी बहुत अफेक्ट करता है। वो तो न केवल सेफ्टी को अफेक्ट करता है, सिक्योरिटी को भी अफेक्ट करता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। फुटपाथ कंटिन्यूटी, काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई फुटपाथ तो 50 मीटर तक है, उसके बाद से तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे काफ़ी बार आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा कि फुटपाथ है, बंदा वहाँ पे नहीं चल रहा है, उसके साइड में चल रहा है रोड पे, क्योंकि रोड तो कंटिन्यूअस है, फुटपाथ में कंटिन्यूटी नहीं है। कितनी बार कोई आगे कोई ऊपर चढ़े नीचे चढ़े, और स्पेशली जो ओल्ड एज के होते हैं वो उतना ऊपर नीचे नहीं कर पाते, वो समतल जमीन पे चलना चाहते हैं। तो ये क्या होता है हमारे, फिर मॉडलिंग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम हर बार डेटा लेके और डेटा कलेक्शन करके फिर रिजल्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है। अगर एक मॉडल होता है तो उसमें आप जो भी आपके पास अवेलेबल डेटा है उसको डाल के आप परसेप्शन कर सकते हैं, परसेप्शन स्टडीज कर सकते हैं। तो मॉडल करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हमने अलग अलग शहरों के मॉडल्स बनाए, फिर ओवरऑल मॉडल्स बनाए, कि देखा कि शायद इंडिया भर में कोई मॉडल चल सके, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया की सारी शहरें अलग अलग है, तो अलग अलग आपको शहरों में अलग अलग ये लगेंगे, मॉडल लगेंगे। आगे बढ़ें। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हमने एक स्टडी में पूरे विशेष रूप से सिर्फ पेडेस्ट्रियन को देखते हुए हमने कैसे पहले पेडेस्ट्रियन क्रैश लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया, फिर कैसे प्रेडिक्ट किया कि कहाँ कहाँ पे नियर मिस लोकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे एक्सीडेंट हो सकते हैं, और फिर हमने मिटिगेशन मेजर्स और उसके इम्पैक्ट्स को कैसे स्टडी किया। ये दोनों पब्लिकेशन है अवेलेबल, फ्री ही है। तो आपको अगर स्टडी के बारे में और जानना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो पहले हमारे यहाँ पे डेटा सोर्स होता है FIR, जो कि पुलिस के पास होता है। क्रैश रिपोर्ट, हर एक्सीडेंट का एक रिपोर्ट होता है, FIR होता है। तो हमने भी लगभग इतनी सारी शहरों के पुलिस के साथ संपर्क किया, उन्होंने हमको एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स दिए। अब ये एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स सब एक्सीडेंट्स के बारे में होते हैं, सिर्फ पेडेस्ट्रियन के नहीं होते हैं, सारे एक्सीडेंट्स के बारे में होते हैं। तो हमको तो सिर्फ हम क्योंकि पेडेस्ट्रियन के बारे में ही देख रहे थे, तो हमने उनमें से पेडेस्ट्रियन एक्सीडेंट्स को अलग किया, अलग करके इस तरीके से डालना चालू किया कि भाई कौन कौन से एक्सीडेंट्स का एटलीस्ट करेक्ट लोकेशन दिया गया है, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि स्पेशली क्या क्या कॉन्टेक्स्ट था, स्पेस और टाइम में एक्सीडेंट कैसे डिफर हो सकता है। स्पेस टाइम, तो मान के चलिए स्पेस मतलब एक जगह की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, वो अगर मार्केट में एक्सीडेंट हुआ है, कि वो ऑफिस लोकेशन में एक्सीडेंट हुआ है, कि वो रेसिडेंशियल लोकेशन में एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके वहाँ पे रोड नेटवर्क क्या था, वहाँ पे स्ट्रीट लाइटिंग था कि नहीं, ताकि हम जाके देख सकें कि इन्वेस्टिगेट कर सकें कि वहाँ के क्या क्या रीज़न हो सकता है एक्सीडेंट का। तो हर FIR रिपोर्ट में लेकिन ऐसे लोकेशंस एग्जैक्टली नहीं दिए रहते हैं। तो पहली मुश्किलात हमें वहाँ पे हमने फेस किया कि फेटल अगर एक्सीडेंट है तो फिर बहुत अच्छा डेटा रहता है, क्योंकि वो रिपोर्ट करना जरूरी होता है। लेकिन जो माइनर इंजरी और मेजर इंजरी वाले होते हैं उसमें लोकेशन डेटा में थोड़ा बहुत
गड़बड़ रहता है, वो लिखा रहता है कि वो दुकान के सामने हुआ है या उस इंटरसेक्शन से 50 से 100 मीटर की दूरी पे हुआ है, तो वो एग्जैक्टली हमको GIS पे जाके डालना थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, लेकिन फिर हमने उसको किया। आगे बढ़ाएं। अब जो कि मैं कह रहा था, स्पेस टाइम हमको रिलेशनशिप देखना था। हमने 3 साल का डेटा लिया। 3 साल के डेटा में हम ये देखना चाह रहे थे कि एक ही लोकेशन पे, एक ही जगह पे पेडेस्ट्रियन क्रैशेस बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं कि सेम है। आपने ब्लैक स्पॉट का नाम सुना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज कहती है कि ब्लैक स्पॉट वो स्पॉट है जहां पे शायद 5 सालों में कुछ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हुए हो, तो वो ब्लैक स्पॉट कहा जाता है। तो पेडेस्ट्रियन के लिए ऐसा तो कुछ है नहीं, तो हमने कहा कि हम देखते हैं कि पेडेस्ट्रियन हॉटस्पॉट लोकेशंस क्या है, पेडेस्ट्रियन क्रैशेस के हॉटस्पॉट लोकेशंस क्या है। कि या क्योंकि हमारे पास 3 साल का डेटा था, तो हमने जानने की कोशिश की कि वो 3 साल में क्या सेम जगह को हमने मान के चला, एक रेडियस बनाया थोड़ा सा, 1 किलोमीटर रेडियस या 500 मीटर रेडियस, उसी रेडियस में बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये देखने की हमने कोशिश की, ताकि हम ये जान सकें कि अगर 3 साल में वो हाई नंबर ऑफ क्रैशेस हैं तो फिर तो कुछ गड़बड़ है उस लोकेशन के साथ। अगर कुछ 1 साल में कम है, 1 साल में ज्यादा है, तो फिर हमने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की कि वहां पे कोई काउंटर मेजर्स अप्लाई किया गया था क्या, कि जिसकी वजह से कम हो गए क्रैशेस, है ना। क्रैशेस कम होने का एक चांस, एक पॉसिबिलिटी है कि वहां पे कोई काउंटर मेजर किया हो, या तो एनफोर्समेंट ज्यादा किया हो, या तो जेब्रा क्रॉसिंग किया हो, कुछ तो किया हो। तो ऐसे करते करते, नेक्स्ट स्लाइड चलिए। ऐसे करते करते हमने हॉटस्पॉट लोकेशंस, ये कोलकाता शहर और अहमदाबाद शहर के लिए हमने 2 हॉटस्पॉट लोकेशंस निकाले, और फिर हमने कहा कि ये कंसेक्यूटिव हॉटस्पॉट्स हैं, हर साल में पेडेस्ट्रियन एक्सीडेंट्स इन शहरों इन लोकेशंस पे हो रहे हैं। आगे चलिए। जैसे मान के चलिए, ये अब अगर कलकत्ते से वाकिफ है तो हावड़ा ब्रिज के आसपास का लोकेशन हमको देखा कि वहां पे बहुत सारा क्रैशेस हो रहा है। आगे चलें। इसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने वहां से CCTV फुटेज मंगाई, जो कि फिर से पुलिस डिपार्टमेंट के पास या रोड ट्रांसपोर्ट लॉ के पास रहती है। CCTV फुटेज मंगाई, और फिर हमने मॉडल करना चालू किया कि अगर हमको क्रैश दिख गया CCTV फुटेज में, वो तो हमने कैप्चर कर ही लिया, लेकिन ये जो नियर मिस क्रैशेस हैं, जो कि होते होते रह गई हैं, किसी ने ब्रेक मार दिया, किसी ने कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा था और कोई लेफ्ट टर्न व्हीकल टर्न कर रहा था तो उसने ब्रेक मार दिया, या तो पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा था, उसने किसी को देख लिया, या पेडेस्ट्रियन रुक गया। तो ऐसी इंडिविजुअल क्रैशेस को हमने मॉडल करने की कोशिश की, और फिर हमने लास्ट में हमने क्या किया, हमने एक्सपर्ट्स और यूजर्स के साथ भी हमने बातचीत की, उसी जगह के जो लोग पैदल चलते हैं उसी जगहों पे, और जो रोड ट्रांसपोर्ट, रोड सेफ्टी, पुलिस, ये जो सब हैं, उनसे ये पूछने की कोशिश की कि क्या क्या काउंटर मेजर्स हो सकते हैं। क्योंकि एक बात उसमें भी बोली गई कि हम अगर बहुत महंगे काउंटर मेजर्स लगा दिए तो इंप्लीमेंट होने में टाइम लगता है। कुछ काउंटर मेजर्स ऐसे होते हैं कि हमने लगा दिया लेकिन लोग, पब्लिक यूज नहीं करेंगे, तो यूजर एक्सेप्टेंस भी एक चीज होती है कि भाई हाँ, हम यूजर भी एक्सेप्ट करता है। तो यूजर से भी हमने पूछा, पेडेस्ट्रियन से भी हमने पूछा, एक्सपर्ट से भी हमने पूछा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि करने से यहाँ पे सेफ्टी इंप्रूव हो सकती है। फिर उन चीजों को हमने सिमुलेट किया। तो ये एक सिमुलेशन मॉडल है, ये अभी तक इंप्लीमेंट तो नहीं हुआ है, हमारी स्टडी जस्ट खत्म हुई है, तो हम इंप्लीमेंटेशन की भी सोच रहे हैं। तो विस्सिम एक सॉफ्टवेयर है जहां पे हम माइक्रो सिमुलेशन कर सकते हैं, सब गाड़ियों का, बसेस का, सबका इंडिविजुअल सिमुलेशन कर सकते हैं। इसमें पेडेस्ट्रियन सिमुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हमने कैलिब्रेट करके उसको एज अ वेरी स्लो मूविंग व्हीकल उसको सिमुलेट किया है। ये वो रास्ता है, वो हुगली नदी है, और इस रास्ते के 4 इंटरसेक्शंस पे, 5 इंटरसेक्शंस पे हमने ये स्टडी की है, और ये पूरे लिंक रोड पे भी की है। आगे चलें। तो हमको करंट कंडीशंस पे मिला कि पेडेस्ट्रियन लेवल ऑफ सर्विस और व्हीकुलर लेवल ऑफ सर्विस ये है।
ये करंट कंडीशंस का हमको मिला। आगे चले, फिर हमने सेफ्टी सरोगेट, आपने सेफ्टी सरोगेट मेजर्स सुने होंगे जो कि सेफ्टी को प्रेडिक्ट करने में हमको हेल्प करते हैं। सरोगेट मतलब उसके अलावा कोई ऐसा कोई मेजर है जो सेफ्टी को प्रेडिक्ट कर सके। तो ऐसा एक टूल है जो कि यूएस के फेडरल हाईवे अथॉरिटीज ने बनाया है, जिसको वो कहते हैं सरोगेट सेफ्टी असेसमेंट मॉडल, SSAM। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, विसिम से जो आउटपुट निकलता है, विसिम का जो व्हीकल ट्रेजेक्टरी का आउटपुट निकलता है, उस ट्रेजेक्टरी को अगर इसमें हम फीड करें तो पेडेस्ट्रियन व्हीकल कॉन्फ्लिक्ट को हम एनालाइज कर सकते हैं। पेडेस्ट्रियन के साथ व्हीकल कॉन्फ्लिक्ट कहां होने जा रहा है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। वो 4 उसके फैक्टर्स होते हैं: टाइम टू कोलिजन, सेफ्टी ऑफ द एंटायर एक्शन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एक्शन एंड डिजायर टू कोलिजन एंड डिस्टेंस टू कोलिजन। राइट, आगे चलें। तो ऐसे मान लीजिए हमारा वीडियो आउटपुट, अगर हम सीसीटीवी कैमरा से वीडियो आता है, उसको हम ग्रिड में कन्वर्ट करके ईच ग्रिड में हम ये कॉन्फ्लिक्ट को मेजर करते हैं। व्हीकल इस ग्रिड से इस ग्रिड में आ रहा है, पेडेस्ट्रियन इस ग्रिड से इस ग्रिड में आ रहा है, तो कौन सा ट्रेजेक्टरी मिलने के चांसेस हैं, कौन से 2 ट्रेजेक्टरीज मिलने के चांसेस हैं। अगर वो मिल जाते हैं तो कोलिजन होता है, अगर नहीं मिलते हैं तो कोलिजन नहीं होता है। ये 2 टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि यूज होती है बहुत सारी, टाइम टू कोलिजन TTC और PET, पोस्ट एनक्रोचमेंट टाइम। ये दोनों को हमने SSAM में मॉडल किया। आगे चलें, फिर हमने एक परसेप्शन क्वेश्चनेयर बनाए। पेडेस्ट्रियन के 50 लगभग 40 एक्सपर्ट और 500 पेडेस्ट्रियंस को ये परसेप्शन सर्वे करवाया कि कौन से काउंटर मेजर्स आपके लिए अच्छे हैं, ये जानने के लिए। आगे बढ़ाएं। इस पे हमने ये एक स्टैटिस्टिकल मॉडल टूल है जिसको यूज़ किया है, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। इसमें हम ये भी जान सकते हैं कि अलग अलग एज ग्रुप, अलग अलग इनकम कैटेगरी, ऐसे यूज़र्स का भी क्या इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि मैं अगर यंग बंदा हूँ तो मेरी सेफ्टी परसेप्शन अलग हो सकती है, मैं अगर मिडिल एज्ड हूँ तो अलग हो सकती है। तो ये ऐसा एक मॉडल है जो कि हमको हेल्प करता है उसके बारे में जानने के लिए भी। आगे बढ़े, इससे हमको पता चला कि फुटपाथ कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉसिंग डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक कंट्रोल इंपॉर्टेंट है और परसेप्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मॉडल के आउटपुट्स हैं, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये भी आउटपुट्स हैं। इसमें आप देख लीजिए, एक चीज़ देख सकते हैं कि मेल कंसिडर्ड मेजर्स रिलेटेड टू ट्रैफिक कंट्रोल एंड सेफ्टी परसेप्शन टू बी मोर इफेक्टिव। तो जो परसेप्शन सर्वे में जो मेल्स थे उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। आप पेडेस्ट्रियन सेफ्टी को बढ़ाने के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल मेजर्स अच्छा बनाइए। पीपल इन हाई इनकम ब्रैकेट हैड सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप विद ऑल द लेटेंट फैक्टर्स एक्सेप्ट फॉर FC। तो ओल्डर पीपल हैड सिग्निफिकेंट। सो देखिए, ये हमको बताता है कि अलग अलग एज ग्रुप, अलग अलग इनकम ग्रुप के अलग अलग परसेप्शंस होते हैं। तो आप मान लीजिए कोई एक स्टडी कर रहे हैं जो कि एक नेबरहुड के लिए सीमित है, तो उस नेबरहुड का जो डेमोग्राफी है वो बहुत अफेक्ट करता है कि आप कौन से काउंटर मेजर्स अप्लाई करें। आगे चलें। तो ये पूरा प्रक्रिया रहा कि हमने ईज ऑफ यूज मांगा, यूजर सर्वे से हमने ईज ऑफ यूज लिया, परसीव्ड इफेक्टिवनेस लिया, फिर एक्सपर्ट से हमने इफेक्टिवनेस और ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। एक्सपर्ट्स को हमने ये भी पूछा कि आप बताएं कि कौन सा इंप्लीमेंट करना आसान है, कौन सा काउंटर मेजर इंप्लीमेंट, आप तो इतने सालों से फील्ड में काम कर रहे हैं, कौन सा मेजर इंप्लीमेंट करना आसान है। तो ये करने के बाद हमने ऑल्टरनेटिव डिजाइन बनाए और उसको फिर से सिमुलेट किया। आगे बढ़े। तो कलकत्ता में हमने 2 रास्तों पे किया। एक तो स्ट्रैंड रोड था जो कि हॉटस्पॉट था, रिकरिंग हॉटस्पॉट था, जबकि और एक रोड था ये PA शाह रोड जो कि नया हॉटस्पॉट बन रहा था। तो ये भी हम जान पाए कि इस एनालिसिस से कि आगे चल के ये हॉटस्पॉट बन सकता है। इमर्जिंग हॉटस्पॉट्स था ये। तो इमर्जिंग हॉटस्पॉट्स में भी हमने एनालिसिस करने की कोशिश की प्रोएक्टिवली कि भाई उसको हॉटस्पॉट बनने से कैसे रोका जा सके, तो उसमें क्या क्या करना जरूरी है। जैसे मान के चलिए PA शाह रोड में आप देखिएगा फुटपाथ कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइट, विड्थ, क्वालिटी,
अगर अच्छा देंगे तो सेफ्टी हो सकता है। कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि स्ट्रैंड रोड जो कि जहाँ पे ऑलरेडी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे देखिए रेफ्यूज एरिया, मतलब 6 लेन का रोड है, 6 लेन के रोड को क्रॉस करने के लिए बीच में 3 लेन के बाद एक कुछ रेफ्यूज एरिया अगर डाला जाए, मीडियन ब्रेक, मीडियन पे रेफ्यूज एरिया डाला जाए तो पेडेस्ट्रियंस मानते हैं कि वो एक सेफ चीज़ होगी। तो एक शहर के अंदर ही दोनों रास्ते पे अलग अलग टाइप ऑफ मेजर्स, काउंटर मेजर्स लगाने की बात आ रही है। ये बहुत सारा एनालिसिस है, एक्सपर्ट्स और यूजर्स ओपिनियन के बारे में रैंकिंग किया गया, कौन से स्ट्रैटेजीज इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। आगे बढ़े। इसके बाद तो हमको मिले 2 ऑल्टरनेटिव्स। एक था कि आप बफर बढ़ाएं, हाई मूविंग ट्रैफिक और पेडेस्ट्रियंस के बीच में बफर बढ़ाएं, या तो पेड़ लगाएं या तो रेलिंग लगाएं, किसी तरीके से थोड़ा सा बफर बनाएं तो सेफ्टी परसेप्शन हमारा बेटर होगा, सेफ्टी बेटर होगा। तो हमने क्या किया, हमने ये बफर को सिमुलेट किया, हमने बफर डाला और फिर हमने कुछ कुछ पैरामीटर्स को चेंज करते हुए सिमुलेशन किया, ये देखने के लिए कि लेवल ऑफ सर्विस कितना बेटर हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स कितने कम हो रहे हैं। और सेकंड था ग्रेड सेपरेशन। अब काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई नहीं, हमको तो यहाँ पे 6 लेन का रोड है, हमको क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत अनसेफ लगता है, हमको तो फुट ओवर ब्रिज ही चाहिए या तो सबवे ही चाहिए। तो ग्रेड सेपरेशन हालांकि बहुत महंगा ऑल्टरनेटिव है, फिर भी हमने उसको, तो हमने सबसे चीपेस्ट भी सिमुलेट किया और हमसे सबसे महंगा वाला भी सिमुलेट किया, ये देखने के लिए कि कितना अंतर हो सकता है इसमें। आगे बढ़े तो सिमुलेशन रिजल्ट्स में ये पता चल रहा है कि सेफ्टी बफर के चलते सेफ्टी बहुत इंप्रूव हो रहा है, और ये ग्रेड सेपरेशन के चलते तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड व्हाट इज इंक्रीजिंग और व्हाट इज रिड्यूसिंग इज आपका डिले थोड़ा बढ़ जा रहा है, क्योंकि फुट ओवर ब्रिज में क्रॉस करने में भी आपका डिले, पेडेस्ट्रियन का डिले बढ़ता है, जबकि वो स्ट्रेट रोड से क्रॉस कर जाए तो जल्दी क्रॉस हो जाता है। और बफर भी होता है, तो अब क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम हो जाएगा, या तो पेड़ लगाएंगे तो थोड़ा सा स्पेस चला जाता है, पेड़ प्लांटेशन कुछ भी हो, तो इसके चलते डिले, तो जो ट्रैवल टाइम है, जो पेडेस्ट्रियन को टाइम लगता है क्रॉस करने में, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन लेवल ऑफ सर्विस कुछ कुछ जगहों पे घट रहा है, तो ये भी हमको बैलेंस करके चलना है। तो यही फाइनल कंक्लूजन रहा कि स्पेशियो टेम्पोरल एनालिसिस करना जरूरी है। स्पेस और टाइम कैसे अलग अलग साल में कैसा चेंजेस आ रहा है और अलग अलग जगहों पे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, ये करना जरूरी है। यूजर परसेप्शन, एक्सपर्ट ओपिनियन लेना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग डेमोग्राफी का अलग अलग परसेप्शन रहता है, और एक्सपर्ट्स बहुत अच्छी तरह से कह सकते हैं कि कौन से एक्सेप्टेबल और इजी टू इम्प्लीमेंट मेजर्स हैं। फ्यूचर डायरेक्शन में डेफिनेटली वी नीड बेटर डेटा रिपोजिटरी, उसके ऊपर आईरैड वगैरह बहुत सारा काम चल रहा है गवर्नमेंट के लेवल्स पे। एनालिसिस एट स्मॉलर सब सिटी स्केल, सिटी के अंदर भी पेडेस्ट्रियंस इतने ज़्यादा डाइवर्स हैं, पेडेस्ट्रियन वॉकिंग एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा डाइवर्स है कि हमको सिटी में सब सिटी लेवल स्केल्स के बहुत सारे पेडेस्ट्रियन एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आईआईटी खड़गपुर में हम ये कह के मैं ख़त्म करता हूँ कि आईआईटी खड़गपुर में हम बहुत सारा काम कर रहे हैं ऑन सेफ्टी, सिक्योरिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी। नेटवर्क रेजिलियंस आजकल बहुत एक बड़ा टॉपिक है कि भाई कहीं कभार एक्सीडेंट हो गया कहीं पे, तो अगर रोड बंद करना पड़ा तो उसका इफेक्ट क्या होता है पूरे नेटवर्क पे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड लाइट रेल वगैरह पे तो हम बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं। हमारा लैब स्पेशली इन सब बारे में इन सब चीज़ों पे काम करता है। पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर असेसमेंट, हमने एक पेडेस्ट्रियन सेफ्टी ऑडिट टूल भी बनाया है, जैसे कि हाईवे का ऑडिट टूल होता है, वैसे हमने एक अर्बन पेडेस्ट्रियन के लिए ऑडिट टूल भी बनाया है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आपको अगर कुछ भी मेरे को कांटेक्ट करना हो या ईमेल करना हो, यू आर वेलकम टू डू सो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन।